अब I am taking distance on x-axis and time on x-axis and distance on y-axis. A body is moving. This one is speed v. It makes an angle theta. It makes an angle theta. So this can be taken on this y-axis. This distance can be taken on this side. Means we are forming the triangle. Yes. So this one is opposite. This one is adjacent. So opposite by adjacent is s by t equals to what? Tan theta. So tan theta is nothing but s by t is nothing but velocity, speed. So v is equals to tan theta is equals to s by t. ये सेकंड डेफिनेशन, ये मैथमेटिकल है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. सो स्पीड tan थीटा, वेलोसिटी tan थीटा, एक्सेलरेशन tan थीटा. तो मैक्सिमम अपन tan थीटा के टर्म्स में लेंगे. tan थीटा इज नथिंग बट y कोऑर्डिनेट बाय x कोऑर्डिनेट. In resolution of vector, y component of vector to the x component of vector. What is the component by horizontal component? Better. Now, this is the question. Run fast. होमवर्क में एक इसमें कराऊंगा अभी मैं. वो फार्मूले में बच्चे में होमवर्क. हाँ. इजी दिखता है बेटा. अकेला घर में टाइम. हाँ हाँ बाबा स्पीड का क्या टाइम है. Taken on y-axis. Time is taken on x-axis. A particle A is present at the point P. This time I am taking t1. This distance I am taking s1. This particle reaches to the point B. Distance is s2. Time is t2. From origin to t2. So I am joining the A and B. So this one is the distance. This is the time and this is the distance. If this one is s1, this total is s2, then what is this one? S2 minus S1. S2 minus s1. This one is t2, this one is t1, then this one is t2 minus t1, and this one is making an angle theta with the x-axis. ये line x-axis के parallel है. Yes. So with the x-axis. So again, tan theta is equals to V is equals to tan theta. Opposite side is by this difference change s2 minus s1 इसका difference और change ये बड़ा है, तो change को कैसा लिखते हैं? Delta से. So this one is delta is by delta is by delta t. Now next, one more. ST graph, x-axis, y-axis. This one is the distance on y-axis, time on x-axis. This one is origin. Now this one is the speed curve. I have to find this speed in small time, very small time. बहुत छोटे टाइम में कैलकुलेट करना है. जैसा आज 12:03 17 सेकंड में क्या देता था?
नहीं मालूम, नहीं मालूम ना। तो वो पर्टिकुलर टाइम पे कैलकुलेट करना है, यानी डिफरेंशिएट, ये बॉडी ड्रॉप करे, यहाँ पर वेलोसिटी कितनी, यहाँ पर स्पीड कितनी, वो कैलकुलेट करना है, तो कैलकुलस यूज करते हैं। सो दिस वन इज स्मॉल टाइम। सो स्पीड इन वेरी स्मॉल टाइम is instantaneous speed. Instantaneous speed. This one is v is equals to, again tan theta is equals to ds by dt. ये d क्या बता रहा? बहुत छोटा डिफरेंस, वो तो बहुत कम चेंज है, इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन। सो डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम गिव्स, अगर डिस्टेंस को टाइम के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करें तो क्या आता आंसर? स्पीड आती। डिस्टेंस को टाइम के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करें तो क्या आएंगे बेटा? स्पीड। तो इसको बोलते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ डिस्टेंस। फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ डिस्टेंस। Now, example. Suppose I am taking s is equals to 3t to the power 4 plus 2t square plus 7 in meter, where 3 second, t in second. Find speed. Speed find करना है at t is equals to 3 सेकेंड। 3 सेकेंड के बाद में स्पीड कितनी थी? सोल्यूशन द सेम, s is equals to 3t to the power 4 plus 2t square plus 7। अब आप लोगों से ही कराने वाला हूँ, ds by dt, दिस वन इज स्पीड, d by dt, s का वैल्यू 3t to the power 4 plus 2t square plus 7 है। डिफरेंशिएट कोई नहीं बोल रहा है, अगर आपको आता तो कर लो, बोलो, हाँ बोलो, आंसर बोलो फास्ट। तो क्या होता मालूम है, जो पहले पढ़ा है ना सर, टाइम पास कर रहे हो, ध्यान दो, सुन लो, बोल रहे टीवी देख के रख लो, वो डिफरेंशिएशन सिखाया था ना, सिखाया नहीं, बताओ बुक में सर आप बाद में सब पढ़ाते हैं। बाद में करा बोलो, सॉरी देन, आई एम सॉरी, मैं तो सॉरी। देखो हो सकता है मैं नहीं कराया हूँ यहाँ पर, डिफरेंशिएशन सीखो बेटा। इंटी डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन, दर के बारे में बच्चे बोली नहीं, करना नहीं बोला, नहीं कराए तो नहीं कराए, ये फार्मूला है। डिफरेंशिएशन में करते क्या, पावर को नीचे लाते और पावर में 1 कम कर देते, देखिए पावर को पावर में 1 कम कर देते। दिस एग्जाम्पल, y इज इक्वल्स टू, पहले ये सिखा दो, d बाई डी एक्स को क्या पढ़ते, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू, नीचे क्या है x है ना, x। अब मैं मान लो ऐसा लिखता हूँ dy बाई dt, इसको कैसा पढ़ते हैं, डिफरेंशिएशन, किसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ y। आज तक टाइम का डिफरेंशिएशन कोई भी नहीं करते, दुनिया की हर चीज टाइम से कंपेयर करते हैं, ऐसी कोई भी चीज नहीं बनेगी टाइम को किसी से कंपेयर करते, समझ आया? डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, इसको कैसे पढ़ेंगे बोलो बेटा? x के इक्वल
इसको पढ़ो, Differentiation of y लिखने दो लिखने दो। with respect to the angle. डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू Angle. थीटा। हो गया? अब देखो एग्जांपल करेंगे अपन। y इज इक्वल टू x स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन कैसा करेंगे? dy बाई dx। ये पावर को नीचे लाओ, x का पावर 2 में से 1 निकालो, 2x। नेक्स्ट एग्जांपल, y is equals to 4x cube plus 7x dy by dx। 4 थीटा, x का पावर क्या कर देना? 2। समझ में आया? अब देखो बेटा, इसका पावर कुछ भी नहीं है तो क्या है? 1। 7 बनता, x का पावर 1 माइनस 1, x का पावर 0। किसका भी पावर 0 है तो आंसर क्या होगा? 1। 7 into 1 ऐसा लिखे तो बोलते किसको पढ़ा दे सर आप? 7 into 1 7, तो वो लिखते नहीं, सीधा डायरेक्ट डाल देते। अब बोलेंगे एग्जांपल, y is equal to x square minus 3x plus 7। क्या लिखो? अब बोलो बेटा, क्या लिखो? चल जाता y is equal to x cube minus 7x square plus 10 dy by dx। x क्या ले रहा हूँ? राइट साइड में जो है ना वो डालना है नीचे। x क्यूब बोलो, 7 टू द, इसको x लगो सा है, ध्यान दो, समझा रहा हूँ। ये 10 है, इसको x नहीं है, मैं x लगा रहा हूँ, x का पावर 0 बोलिए, लगा सकता हूँ। x का पावर 0 बोल तो 1 होता है, 1 into 10 10 होता है, 10 0 सा 0। यानी कांस्टेंट रहे उसका डिफरेंशिएट करो तो आंसर क्या आने वाला है? 0। कांस्टेंट किसको बोलते हैं? जिसके साथ xy अनाथ है। 3x स्क्वायर माइनस 14x हो गया। अब देखो इसका करेंगे डिफरेंशिएशन। 3 4 दा 12 t क्यूब 2 टू दा कांस्टेंट 0 होगा। ये क्या आ गई? स्पीड। स्पीड किस पे निकालना? t इज इक्वल्स टू 3 सेकंड। 12 into 3 cube plus 4 into 3। 3 3 are 9, 9 3 are 27 12 into 27 plus 4 3 are 27 12 are करो पेन ले आओ। 284 324 ऐड कर दो इसको। 336। ये किसमें दिया? मीटर में। टाइम किसने दिया? तो मीटर पर सेकंड।
देखो थोड़ा since b is equals to ds by dt ये पढ़े ना आप भी आप लोग so ds is equals to b dt ये छोटा सा डिस्टेंस है थोड़े से टाइम छोटा सा डिस्टेंस थोड़े से time। आपको वो पूरा डिस्टेंस निकालना है पूरे टाइम तो क्या करते मालूम है डिफरेंशिएशन का उल्टा करते हैं जिसको बोलते हैं इंटीग्रेशन क्या बोलते हैं इंटीग्रेशन। तो इसको क्या लिखते हैं ds इंटीग्रेशन ऑफ ds इंटीग्रेशन ऑफ d dt तो छोटे को इंटीग्रेट कर दिए तो s बन गया ये इंटीग्रेशन ऑफ d dt तो इसके लिए अपना अपन इंटीग्रेशन सीखना ना जैसा डिफरेंशिएशन सीखे होता है इंटीग्रेशन सीखना देखो सर उसमें ऐसा है तो उसमें गलती नहीं आता। इसमें नहीं आता इसमें इसमें अभी b का वैल्यू आता था मतलब वैल्यू मतलब दी नहीं हटता। हटता कोई इंटीग्रेशन हटा तो हटेगा प्लेट सामने है खाना है इसके अंदर अपन पेड़ों से है तो आने वाला क्या समझता खाने वाले खाने वाले ओके प्लेट हट गई अपन पेड़ों से खा लिए तो खाने के बाद में वो थाली हटती ना पहले इंटीग्रेशन होने के बाद में इंटीग्रेशन का सिंबल हटता देखो बेटा सिंबल इसका मतलब होता है इंटीग्रेशन ध्यान से सुनो पहले प्लीज इसको पढ़ते हैं इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x जैसा वहाँ डिफरेंशिएशन कराना या इंटीग्रेशन करने विद रिस्पेक्ट टू x किसका करना नहीं बोले अब बोलेंगे इसको क्या बोलेंगे y dx इंटीग्रेशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x अगर मैं ये लिखूं इसको क्या पढ़ते बोलो इंटीग्रेशन ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू टाइम। खत्म अगर दूसरा बदल गया तो वो विद रिस्पेक्ट टू बोलना है अब इसका पहला और बेसिक फार्मूला इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx उसमें क्या करें पावर को इंटू मिलाए डिवीजन मिलाए और पावर को एक वन कम कर दिए इसमें क्या करना है पहले पावर में एक बढ़ाना है फिर जो पावर आया डिवीजन में डालना है उसमें ऊपर वाले पावर को नीचे लाना है इनटू में और पावर में एक कम करना जस्ट सुनो प्रोसेस पावर को नीचे लाए पावर में से एक कम करें पहला काम कौन सा हुआ नीचे लाने का दूसरा काम कौन सा हुआ इसमें क्या होगा उल्टा पावर में पहले वन ऐड करो और जो टोटल पावर है उसको नीचे डिवीजन में लिखो और प्लस सी डालना काय उदाहरण से क्वेश्चन हो सकता है आपका काय उदाहरण समझे अभी बताइए 2 मिनट हो गया देखो ये हो गया आप लोगों को अब याद रखो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का उल्टा है इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का यानी किसी को अपन डिफरेंशिएट कर दिए फिर वापस इंटीग्रेट करें तो वही वैल्यू आना उल्टा है तो जैसा प्लस और एडिशन और सब्सट्रैक्शन एक दूसरे के उल्टे हैं पैसे गिनते हुए एक नोट ज्यादा दे दिए मेरे गिना और एक नोट का मैं देखो एक ज्यादा है क्या हाँ ज्यादा है निकाल लिया वापस बराबर हो गया पहले ऐड हो गया था फिर सब्सट्रैक्ट कर लिया बराबर हो गया या कुछ रह गया नोट का समझना तो डिफरेंशिएशन करने के बाद में जो आंसर आता है उसको इंटीग्रेशन करें तो वो का वही आंसर आना मुझे देखते हैं आता है नहीं आता y is equals to x square plus 3x plus 7 इसका डिफरेंशिएशन करो 3 अब इसका इंटीग्रेशन करें तो ऊपर वाला आना ना रूल के हिसाब से इसको डिफरेंशिएट करें तो ये आया इसको वापस इंटीग्रेट कर देता हूँ तो ऊपर वाला आना देखेंगे
देखो बेटा ये प्रोसेस खत्म हो गया डिफरेंशिएशन का। सेकंड पार्ट चल रहा मेरा dy is equals to 2x plus 3 ये dx इधर ला लिया। इन चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है मैं छोटा हूँ मेरे को पूरा करो। कभी भी ऐसा रहे तो क्या कर देना है इंटीग्रेशन कर देना है। तो इंटीग्रेट कर रहे अपन dy इंटीग्रेशन ऑफ 2x plus 3। ध्यान दो ये dy का y बन जाएगा पूरे का पूरा इंटीग्रेशन हुआ। तो अब इसको मैं ऐसा लिख सकता क्या क्या देखना है आपको 3x to the power 0 dx लिख सकता हूँ मैं। x का पावर 0 मीन्स आंसर 1। इसका भी पावर 0 रहे तो आंसर 1 into 3 तो होता है ना। अब इंटीग्रेशन कर रहा हूँ 2 जैसे का वैसा x का पावर क्या है अपन तो पावर में और एक ऐड करो कर देंगे 1 plus 1। अब पावर को नीचे लिख दिया सिंपल रूल है वो फॉलो कर दिया। प्लस का प्लस डाल दिया 3 x का पावर 0 है 1 ऐड करो ये नीचे डिवीजन में डाल दो अब 2 into x square by 2 प्लस 3 into x का पावर 1 by 1 तो ये क्या 2 2 कट गया x square plus 3x x square plus 3x आया क्या देखो ऊपर वाला नहीं आया सर कांस्टेंट नहीं आया। ध्यान दो 7 नहीं आया था क्योंकि वो कांस्टेंट था वो क्या था नहीं मालूम अपने को उसकी जगह पे c वो c कहाँ से लेके मालूम है जब हम डिफरेंशियल वैल्यू को जो डिफरेंशिएट हो चुका है उसको इंटीग्रेट करें तो सेम वैल्यू आती लेकिन कौन नहीं आता कांस्टेंट नहीं आता। वो कुछ भी हो सकता है 0 भी हो सकता है 10 भी हो सकता है 100 भी हो सकता है 1000 भी हो सकता है। तो कांस्टेंट की जगह क्या लिख रहे हैं c। समझ में आ गया c क्यों लिखे समझे मिटा देना काय के लिए वो लिखना। अभी मैं एग्जांपल इंटीग्रेशन ऑफ 3x square plus 4x इंटीग्रेशन बोलो बेटा फास्ट इसका पावर क्या है 4x square by x cube plus स्क्वायर। इसमें कांस्टेंट क्या था होगा डिफरेंशिएट करें जब हमारा क्या मालूम सर तो मुझे मालूम सी लिख दिया समझ में आया मेरे को भी नहीं मालूम तो सी लिख दिया। अब दूसरा एग्जांपल इंटीग्रेशन ऑफ 3x to the power 99 plus 4x to the power 4 plus 7 इंटीग्रेट करो 3x का पावर 100 होता डिवाइडेड बाय 100 प्लस 4x 7 के साथ x है क्या नहीं है तो 7x to the power 0 मानना तो क्या लिख देना 7x कांस्टेंट के साथ x लगा देना। अब ये किसका तो भी वैल्यू है डिफरेंशिएट होने के बाद में तो उसमें कांस्टेंट था वो यहाँ नहीं आया तो उसके प्लेस में c। थर्ड इंटीग्रेशन ऑफ x to the power 4 3x to the power 4 minus 7x 3 plus 9x square plus 10x plus सब प्लस dx बोलो बेटा इंटीग्रेशन तो डिफरेंशिएशन में ऊपर वाले को नीचे लाके ऊपर वाले को एक कम कर देते। इंटीग्रेशन में ऊपर वाले में 1 ऐड करके ऊपर वाले को नीचे डिवीजन में डाल देते।
My body from AC is equals to 2t square minus 3t plus 4 meter. Meter per second. In 2 seconds, given that at t is equals to 0 second, s is equals to 2 meter. This is equals to 2 meter. Now, since speed equals to ds by dt, am I right? Yes. So what is ds? ds is equals to v dt. Now integration of ds equals to integration of v dt. Now will you tell me this becomes s. What is the v value given? 2t plus 1 dt. Now integrate 2t square plus t constant को x रहते x लगा लीजिए plus c Sir, 2t square by 2 by 2 cancel. now s is equals to t square plus t plus C. since at t is equals to 0 s is how much 2 meter given so s is equals to 2 equals to 0 plus 0 plus c so c is equals to 2 meter so therefore equation become s is equals to t square plus t plus 2 now you have to find distance at कौन से टाइम पे निकालना है 2 seconds. 2 seconds so therefore distance at t is equals to 2 second s is equals to 2 square plus 2 plus 2 4 plus 4 8 मीटर समझ में आ गया देखो क्या है बेटा यहाँ पर स्पीड दिया है कोई स्पीड के इक्वेशन को यूज करके डिस्टेंस निकालना है तो अपने को कुछ नहीं मालूम बोल के समझना पहले स्पीड का फॉर्मूला निकालना अब अपने को निकालना क्या एस निकालना है तो इसको इधर भेज दो भेज दिए इन चिल्ला चिल्ला के प्रोग्राम में छोटा हूँ पूरा कर दो इंटीग्रेट कर देना है इसको इंटीग्रेट v का वैल्यू दिया 2t plus 1 तो यहाँ 2t plus 1 dt यहाँ t रहता है बाहर में dt रहता अंदर x रहता है यहाँ dx रहता अब इसका इंटीग्रेट कर दिए 2t का 2t स्क्वायर बाई 2 1 का t प्लस कांस्टेंट लगाना बोले आपको s is equals to ये हो गया एक कंडीशन देता हूँ हर प्रॉब्लम में गिवन दैट एट t is equals to 0 s 2 मीटर है बिल्कुल s का फार्मूला अपने को ये आ गया ये 2 लगा दिया हमने टाइम क्या है 0 है 0 प्लस 0 प्लस c तो c का वैल्यू 2 मीटर आ गया ना अब ये c का वैल्यू यहाँ लगा दो आप तो क्या बन गया इक्वेशन e स्क्वायर प्लस t प्लस 2 तब t कौन से टाइम पे निकालना है आपको 2 सेकंड में निकालना है तो t इज इक्वल टू 2 सेकंड और सब्स्टिट्यूट करो मीटर डिस्टेंस आ हाँ फिजिक्स में पूछते बोलते करा रहा हूँ मीट में पूछता